Hello students of class 10th. Welcome in English class. Today the fourth chapter from your book First Flight from the Diary of Annie Frank. It's written by a teenager girl, Annie Frank herself. It is autobiographical type of the chapter diary entry. It is the diary entry. You know students, you have read a lot types of form of literature, so it is one of them, diary entry. Okay, in this chapter Annie Frank have written about the World War II, whatever the dictatorship of Hitler in Germany, what happened there, means everyone was that time having fear of that, because Jews much more neglected by the white peoples, and diversity among them much more, white and black, apartheid system. Okay, because he want to make a new nation with the white people, so having hateness and neglection of the black people. Okay, it's given in this chapter, a historical chapter it is. Annie Frank have written and started from her birthday with the pen and diary, whatever given of her grandmother. Okay, so everything written in this chapter, we will start it. Okay, Annie Frank, 10 October 1942. It's written on the photo. Okay, whatever here. Let's start the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. The statement is written by Annie Frank, was the teenager girl herself. She have written the age in the beginning paragraph of this chapter. Means she is saying that writing of diary entry is really very strange thing, because she was a young girl. She has not written before any critics, any writings. Okay, बताती है कि डायरी एंट्री बहुत ही विचित्र रचना है, अनुभव है मेरे लिए, औरों के लिए भी है। इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने कुछ पहले नहीं लिखा है, बट आल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड। कहती है कि बाद में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा उस स्टोरी में जो कि एक 13-year-old गर्ल, स्कूल गर्ल ने लिखा हो। लोग सोचेंगे क्या लिखा होगा उसने, छोटी बच्ची है, क्या एक्सपीरियंस है उसका, दैट्स इट। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest. In these lines, Frank have written that it is not matter, it is the writing of a 13-year girl, but she feel like writing and have greater need to get all kinds, means उसे लगता है कि मेरे साथ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं उपलब्ध जो कि राइटिंग्स के लिए ज़रूरी होती हैं, और वो सारी चीज़ें उसके सीने में है। दैट इज एक्सपीरियंस वॉट एवर शी वांट टू राइट। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, वेरी नाइस। मीन्स पेपर जो है वो पेशेंसफुल होते हैं,
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कुछ जल्दीबाजी नहीं करते ना, दैन पीपल। लेकिन जो लोग होते हैं उनमें पेशेंस कम होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. एक दिन वो सोचती है इसके बारे में जब वो बैठी हुई है अपनी ठुड्डी को गड़ा करके अपने हाथों के बीच में, सोचती है कि पेपर्स में बहुत पेशेंस होता है पीपल के अपेक्षा। अगर मैं कोई चीज़ किसी से कहती हूँ तो वो 2-4 लोगों से 10 लोगों से कह देगा, लेकिन अगर उसको पेन और पेपर से लिख करके एक किसी डायरी में कैद करती हूँ तो वो अपने आप को ऐसे सीक्रेट बनाए रखेंगे। ओके। Bored and listless, wondering whether to stay in or go out, I finally stayed where I was, brooding, yes, paper does have more patience. उसने कहा कि जो कुछ भी मैंने किया पेपर से, तो मुझे लगा कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स read this stick-backed notebook, grandly referred to as a diary. फिर उसने सोचा कि ये जो एक छोटी सी नोटबुक है, बैंडेड है, उसमें कुछ रेफरेंस करके मैं उसका रेफरेंस देती हूँ डायरी, जिसमें वो लिखना शुरू करती है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, मीन्स जबकि उसको एक सच्ची दोस्त मिल गई डायरी के रूप में जो किसी से कुछ नहीं कहेगी। ओके। इट प्रोबेबली वन नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंसेस, मीन्स अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक सी इज सेइंग दैट नो डिफरेंस एमंग फ्रेंड, ए बेस्ट फ्रेंड एंड ए डायरी। ओके, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और फिर एनी फ्रैंक कहती है कि मेरे पास मेरी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक डायरी बनाऊँ और अपने मन की सारी बातें जो भी मेरे मन में हैं उसमें लिखूँगी डायरी में। ओके। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की जो पूरी तरह से इस संसार में अकेली है, बाहर की दुनिया में। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, लेकिन मैं नहीं, मेरे पास मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। 16-year-old सिस्टर, मेरी 16 साल की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम। मीन्स शी इज़ एक्सप्रेसिंग अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड एंड मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। उसका एक भरा पूरा परिवार है, उसके फ्रेंड्स भी हैं। ओके, वो उनको भी बुला सकती है। एंड नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और कहती है कि सबके बावजूद सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के, एक सच्चा दोस्त जिससे वो अपना सब कुछ कह सके, सब कोई है उसके पास। ओके। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। कहती है जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ तो बहुत अच्छा समय रहता है, वो मेरे दिन का सबसे अच्छा समय वही है। लेकिन जब वो अपने आप को लाती है, किसी से कोई बात करती है, तो बस केवल
ऑर्डिनरी टॉकिंग रहती है उसमें। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र, हम ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो पाते उनसे भी। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है उसकी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कहती है मेरी प्रॉब्लम है कि मैं किसी के बहुत नियर नहीं हो पाती हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनमें हेजिटेशन होता है, किसी को बहुत क्लोज नहीं बना पाते। ओके, इन एनी केस दैट्स जस्ट नाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। कहती है कि कुछ होते हैं ऐसे कि जो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, अपने आप में कोई चेंज भी नहीं ला पाते हैं, जैसे चाह कर भी नहीं कर पाते। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए एनी फ्रैंक ने डायरी स्टार्ट कर दिया, राइट करना, डायरी एंट्री शुरू कर दी, क्योंकि उसकी कोई इतनी क्लोज़ फ्रेंड नहीं थी जिसको वो अपने दिल की सारी बात, अपने मन की सारी बात बता सकती, और जो किसी से नहीं कहती। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। यू हैव टू रीड द चैप्टर लाइन टू लाइन and write the difficult words meaning. Thank you class for today. Thank you.